स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Hello students, welcome back to Study IQ again. In this video, we will discuss one of the remark made by General Secretary of RSS, Mr. Dattatreya, who said that the words socialist and secular not the part of original constitution or preamble. So in this video, we will discuss the history of the word socialist and secular in the context of Indian preamble first. Second, we will try to discuss that can Parliament delete these two words, and if Parliament is deleting these two words, what will be the impact? So first, let's discuss that whether these two words were the part of original preamble or not. So first thing related to that this was the original preamble where these two words were not written. As you all know, okay, sovereign, democratic and republic were the keywords. Three keywords were there. But what happened? Via 42nd Constitutional Amendment Act, we all know, in 1976, three keywords were added in the Indian Constitution. The first keyword was sovereign, then socialist, the second keyword, and socialist and secular was the third keyword. Apart from that, integrity was also added. Integrity was also added. But in this video, we will going to discuss these two words. So whatever the remark made by the General Secretary of RSS is not incorrect. It is correct. And this is not the first time. This is the position, and such statements are made by many dignitaries in India, many politicians in India, many a times. है ना, हमने देखा है. So that was the history that you all know. Socialist and secular, not the part of original preamble, but they added via 42nd Constitutional Amendment Act during the emergency declared by Prime Minister Indira Gandhi. So amendment also added integrity to the preamble and changed unity of the nation with the unity and integrity of the nation that we all know. ठीक है, एक और आर्टिकल था, a lot more from the emergency era 42nd amendment is still the part of Indian constitution. तो क्या हम उनको भी चेंज करेंगे? उस पे कभी और बात करते हैं, आज इसी चीज पे डिस्कस कर। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि मॉर्निंग बैच जो है प्रतिज्ञा वाला, ये एंड होने वाला है इसकी सेल ऑन 30th जून, है ना, बहुत कम समय बचा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं लोवेस्ट प्राइस पे, और आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं SU लाइव, तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। बहुत सारे फीचर्स हैं सच एज एक्स्ट्रा वैलिडिटी 6 months की, प्लस इजी रिफंड फैसिलिटी, ये भी इसी के साथ जुड़ी हुई है। तो आप ज्वाइन कीजिए क्योंकि ये सेल खत्म होने वाली है 30th जून को। इसके साथ 5th जुलाई से फिलोसफी का ऑप्शनल बैच स्टार्ट होने वाला है। यू कैन यूज SU लाइव कोड टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट, एंड यू कैन कॉन्टेक्ट विद दिस नंबर इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू फिलोसफी ऑप्शनल. ओके, दीज पीपल will guide you and they will make a direct contact with the student with me. Okay, so you can contact on this number. You can avail this PDF from this Telegram channel. So can the Parliament remove the words socialism and secularism from the preamble of the Constitution? So after having discussion on that amendment made by Srimati Indira Gandhi in 42nd Constitutional Amendment Act in 1976 during the emergency era, Parliament added the word socialist and secular. Now we will discuss that can Parliament amend or remove these words? Yes. Why? Because preamble is the part of Constitution, and as the entire Constitution can be amended by Parliament, the same thing is true with the preamble as well. So yes, the Indian Parliament can remove the words socialism and secularism from the preamble of the Constitution, as preamble is considered as the what amendable part of the Constitution. ठीक है, मतलब ये words delete किए जा सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है. Why? Because amendability of preamble is also subjected to the basic structure of the Constitution. Okay, that was
Keshwanand Bharati case. We all know basic structure of constitution. What are the features of basic structure of the constitution? What are the constituent and what constituent basic structure of the constitution? We all know. So that amendability of the constitution, that amendability of the preamble will be subjected to basic structure of the constitution. Okay, so held that the preamble is the part of constitution and can be amended via Article 368. We all know, provided the amendment does not violate the basic structure of the constitution. ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट नहीं होना चाहिए. बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, द सुप्रीम कोर्ट हैज आइडेंटिफाइड सेक्युलरिज्म. अब एक एक वर्ड पे जाते हैं. तो सेक्युलरिज्म को स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमाई जजमेंट में यह बोला है कि सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है. अब आप एक बात बताओ, प्रीएम्बल को अमेंड करने जाओगे, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म को रिमूव करने जाओगे, तो जैसे ही सेक्युलरिज्म रिमूव होगा बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हो सकता है. ठीक है, सिंबॉलिकली तो हो ही सकता है. वी आर नॉट सेइंग कि सिस्टमेटिकली या सब्सटेंशियली होगा, लेकिन सिंबॉलिकली तो होगा. वहां से वर्ड हटाने का मतलब तो कुछ यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट इसको ऑब्जेक्ट कर सकता है. ठीक है, तो प्रीएम्बल अमेंडेबल है, लेकिन ये वर्ड डिलीट करते समय प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, रिमूविंग सेक्युलरिज्म कुड बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट एज एन अटेम्प्ट टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर, पोटेंशियली लीडिंग टू द अमेंडमेंट बीइंग स्ट्रक डाउन. ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्रक डाउन कर दे. द स्टेटस ऑफ सोशलिज्म as a part of basic structure is less clear, but it has been associated with the constitutional commitment of justice and equality. कभी भी किसी भी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि सोशलिज्म इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बट सेक्युलरिज्म वाज डिक्लेयर्ड इन एसआर बोमाई जजमेंट. ये भी आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है प्रीलिम्स में. कोर्ट्स हैव इंटरप्रेटेड सोशलिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट एज द मिक्स्ड इकोनॉमी रादर देन द स्टेट कैपिटलिज्म, जो कि रशियन या चाइनीज या दूसरी सोशलिस्ट कंट्री में होता है, वैसा नहीं है. यहाँ पे कुछ और ही उसका मीनिंग बताया है इन एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस एज वेल. You all know what constitute basic structure of the constitution: supremacy of the constitution, sovereign democratic republic nature of the Indian constitution, secular character, separation of power, federal. यहाँ पे डायरेक्ट तो सोशलिज्म नहीं है, लेकिन वेलफेयर स्टेट है. और ये जो सोशलिज्म वर्ड है ये वेलफेयरिज्म से डायरेक्ट कनेक्टेड है. तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जब चैलेंज तो होगा, ये तो आप जानते ही हो अच्छे से, जब भी चैलेंज होगा तो हो सकता है कि इसको लेकर के वेलफेयर स्टेट को इसको भी स्ट्रक डाउन कर दे. तो अमेंड कर सकते हो, ये पार्लियामेंट की पावर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको इनवैलिडेट कर सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है. ठीक है, मूविंग अहेड विद दिस, सोशलिज्म इन द प्रीएम्बल. अब सोशलिज्म पे बात कर ले. सेक्युलरिज्म का तो मैंने बता दिया कि सेक्युलरिज्म तो डायरेक्ट बोल दिया है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको अमेंड करना बहुत मुश्किल होगा. सोशलिज्म का क्या सीन है? सोशलिज्म इन द प्रीएम्बल, Indian version of socialism, as we all know that it is not Marxist socialism, rather it is Fabian or democratic socialism, does not imply the strict state capital socialism, but rather a commitment to social justice, equality and mixed economy aimed at reducing inequality. तो वो वाला नहीं है जो चाइना या यूएसएसआर में रहा है. In D.S. Nakara versus Union of India, the Supreme Court described socialism as a constitutional goal to achieve the welfare state. तो इंडिया में सोशलिज्म जुड़ा हुआ है किससे? वेलफेयर स्टेट से, emphasizing economic and social equality. However, it did not explicitly categorize socialism as a basic structure of the constitution. तो हो सकता है कि ये बच जाए और सुप्रीम कोर्ट उनको साथ में जोड़ के देखे कि सोशलिज्म के जाने से वेलफेयर स्टेट चले जाएगा, वेलफेयर स्टेट के जाने से जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है इनइक्वालिटी खत्म करने का, इक्वालिटी लाने का, वो भी जा सकता है. तो हो सकता है कि इसको भी यहां पे चैलेंज करके इनवैलिडेट कर दे. ये सारे जजमेंट मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि किस जजमेंट में क्या बोला है. State of Tamil Nadu versus L. Abu Kawur by the court upheld the nationalization policy as consistent with the socialist ethos, but again it did not firmly establish socialism as an unamendable feature.
कभी भी नहीं बोला है। और पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा में तो कोर्ट हैव इंटरप्रेटेड सोशलिज्म इन द लाइट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म सजेस्टिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, जो कि भारतीय एयरटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी हमें दिखता है, ठीक है। तो जिस तरीके से सेक्युलरिज्म का कंफर्म है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, सोशलिज्म का अभी भी कंफर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वेरिएबल इंटरप्रिटेशंस हैं। इनफैक्ट अभी कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जब उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा था। मूविंग अहेड विद दिस, इंपैक्ट क्या होगा? अब सेक्युलरिज्म वर्ड को हटा देते हैं तो क्या इंपैक्ट होगा? बिकॉज सेक्युलरिज्म वर्ड इज शोइंग इंडियाज कमिटमेंट टुवर्ड्स द रिलीजियस डाइवर्सिटी, मल्टीकल्चरलिज्म। तो अब इस शब्द को हम हटाते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है? लीगल इंप्लीकेशन मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अच्छा, लीगल इंप्लीकेशन, क्या प्रियम्बल से हटाने से सेक्युलरिज्म चला जाएगा? नहीं। हम सब जानते हैं कि जो प्रियम्बल वर्ड है, preamble will not give any power to the executive or legislature or the judiciary, nor preamble will prohibit them to do anything. preamble में जो भी लिखा हुआ है वो तो सिंबॉलिक है। अब सब्सटेंटिव प्रोविजन पे आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में सब्सटेंटिव प्रोविजन कहां दिए हुए हैं। हम सब जानते हैं आर्टिकल 14 में दिया है, आर्टिकल 15 में दिया है, आर्टिकल 25 टू 28 में दिया है, और बहुत सारे जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं जस्ट लाइक एसआर बोमाई जजमेंट। तो वो सब्सटेंटिव प्रोविजन में क्या वो चेंज होंगे? नहीं। तो प्रियम्बल में चेंज करने से बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ जाएगा, ये भी हम बोल सकते हैं। मतलब एक बैलेंस डिबेट भी हम कर सकते हैं इस पे कि हाँ, मतलब डिलीट कर भी दिया तो इससे क्या हो जाएगा, क्योंकि सब्सटेंटिव प्रोविजन तो डिलीट नहीं होंगे, वो तो वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। एक सिंबॉलिक एक्ट हो सकता है। दूसरी बात, जुडिशियल स्क्रूटनी, हाँ जुडिशियल स्क्रूटनी होगी क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। मूविंग अहेड विद दिस, पॉलिटिकल एंड सोशल इंप्लीकेशन, हाँ परसेप्शन ऑफ इरोजन, बिल्कुल सही बात है। एक परसेप्शन बन जाएगा कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री से, एक मल्टी रिलीजियस कंट्री से जो सारी रिलीजन्स को अपनाती है, उनके फेथ में भरोसा रखती है, उनको सब लोगों को सिंथेसाइज करती है, उससे हम थोड़ा सा दूर हो सकते हैं। परसेप्शन में एक नैरेटिव बना सकते हैं लोग। सो द रिमूवल ऑफ सेक्युलरिज्म फ्रॉम द प्रियम्बल कुड रिसीव एज अ सिंबॉलिक रिट्रीट ऑफ इंडियाज कमिटमेंट टू द रिलीजियस प्लूरलिटी और डाइवर्सिटी, ठीक है, ये एक चीज हो सकती है। दूसरा, पोलराइजेशन हो सकता है। वैसे ही जो कम्युनल चार्ज्ड एटमॉस्फेयर है कंट्री का, उसमें और ज्यादा पोलराइजेशन की हम साइड, और ज्यादा पोलराइज कर सकते हैं लोग, कम्युनल पार्टीज स्पेशली, ठीक है। कम्युनल टेंशन एज इट माइट बी इंटरप्रेटेड एज अ फेवरिंग अ पर्टिकुलर रिलीजन और आइडियोलॉजिकल एजेंडा, चाहे उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा क्योंकि वो सिंबॉलिक है। मैंने आपको बताया सब्सटेंटिव प्रोविजन चेंज करना बहुत मुश्किल है, तो वो तो होने से रहे। तो एक सिंबॉलिकली हटा दोगे तो बहुत गड़बड़ हो सकती है, उसके सोशल रिपरकशंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इंटरनेशनल इमेज पे भी खतरा हो सकता है, चाहे हम कुछ करें ना करें, ठीक है, एक ये हो सकता है। Impact on India's welfare character by removing the word of socialism. Indian context, it refers to the commitment to social justice, economic equality and welfare state as against to the state socialism. ठीक है, but it is not explicitly associated with the basic structure. It is associated with the welfare state and welfare state is the part of basic structure. तो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है कि इसको invalidate करे सुप्रीम कोर्ट। जुडिशियल रिस्पॉन्स मिक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सिंबॉलिक इंपैक्ट है क्योंकि पॉलिसीज तो चलती ही रहेगी। रिमूविंग सोशलिज्म कुड बी सीन एज ए शिफ्ट टुवर्ड मार्केट ड्रिवन लेस वेलफेयर ओरिएंटेड स्टेट, ऐसा हो सकता है, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन इतना तो वेलफेयरिज्म है, इतना एक वर्ड को हटाने से क्या वो वेलफेयरिज्म जाएगा? मुझे नहीं लगता कि जाएगा। पब्लिक परसेप्शन चेंज हो सकता है, अगेन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्पेशली द सोशलिस्ट पार्टीज हैं, और यू कैन से सो कॉल्ड सोशलिस्ट पार्टी हैं, वो इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना सकती हैं, ठीक है। वो ये भी बता सकती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है एंड ऑल, ठीक है। और पॉलिसी शिफ्ट, इफ वेलफेयर मैकेनिज्म लाइक मनरेगा, फूड सब्सिडीज एंड पब्लिक हेल्थ केयर रिमेन्स इंटैक्ट, द रिमूवल माइट हैव लिमिटेड इमीडिएट इफेक्ट ऑन द वेलफेयर कैरेक्टर, ठीक है। हालांकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस की है इस तरीके की पिटीशंस।
अब आगे क्या होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हो सकते हैं, है ना। प्रीएम्बल से हटा भी दिया तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, सिंबॉलिक इंपैक्ट है। और लेकिन बात यह है कि वो सिंबॉलिक हटाना, उसके रिपरकशन बहुत ज्यादा हो जाएंगे सोसाइटी के ऊपर। तो क्या वो हटाना सही रहेगा? क्योंकि बने रहने से भी क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये भी तो बोल सकते हैं। तो इसकी डिबेट है, देखते हैं आगे क्या होता है, उस पर कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ब्रॉडर इंप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए, ब्रॉडर एंड सब्सटेंटिव इंपैक्ट। प्रीएम्बल इज अ गाइडिंग स्टेटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, बट द सब्सटेंटिव फ्रेमवर्क ऑफ सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर इज एम्बेडेड इन द स्पेसिफिक आर्टिकल, और जिनको हटाना बहुत मुश्किल है। पॉलिटिकल फिजिबिलिटी, है ना, ये प्रैक्टिकल बातें करें कि क्या हटाना इतना इजी है, नहीं है। उसको अमेंड करना मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना, और उसके लिए 368 में आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, मतलब पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए। क्या आप कर पाओगे? तब बात करते हैं। और जुडिशियल सेफगार्ड ऑलरेडी है, ठीक है। तो इसके बाद हम बोल सकते हैं कि हटाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिबेट हम बोल सकते हैं कि ये फिर से छेड़ दी गई है या लगातार छेड़ दी जाती है, लेकिन उसके बहुत ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन उस जो भी सेक्युलरिज्म या सोशलिज्म है उसका एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। लास्ट ईयर ही जो क्वेश्चन आया था वो आप सब जानते ही हैं। हाउ इज इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, डायरेक्ट पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, पढ़िए, और इसका मॉडल आंसर मैं जो ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पे उस पे शेयर कर दूंगा आज ही, ठीक है। तो लिखिए, ट्राई कीजिए इसको, क्योंकि सेक्युलरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस टू अवर कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म, ये जो क्वेश्चन पूछा था ये 2019 में पूछा था, ये क्वेश्चन इन 2023 में पूछा हुआ है। तो 2 बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया है, प्रीलिम्स में भी लगातार आता रहता है, इसलिए ये 3 क्वेश्चन है आपके सामने। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में पोस्ट कीजिए, जिसका भी सही आंसर होगा उसको हम लाइक कर देंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, और इस पे लाइक से ज्यादा आपको ये करना है कि पढ़िए और इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि ये वीडियो देखने का कुछ पर्पस पूरा हो कि हमने देखा तो उससे हमें कुछ निकला, एग्जाम ओरिएंटेड हमने कुछ सीखा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।